if we've got a cricket ball in hand by the time we finish the Dhoni press conference, I'm going to toss it across to you and tell our viewers what's wrong and with Umesh Yadav in just a bit. Going across to the press conference being addressed by Mahendra Singh Dhoni. He's doing very badly. People have lost their hope. And suddenly you come up, and on the eve of the World Cup, your team and you personally has assured that, everything will be all right. The other day, Shikhar Dhawan and Suresh Raina, they also said that, don't worry, we will come back. And you do come back. And it's been happening again and again. So that's why I'm saying that why do you and how do you hide your magic wand? I think it's the belief and trust that we have in each other. At times it takes time. Not to forget, it's a competitive sport. We represent our country, we want to do well, but it's the same with all the other countries also. They're representing their respective teams. At times the condition favors the other team more than it favors us. So you have to accept all of that. At times you have to accept that, you were beaten by your opposition, that was more suited to the condition or that played better cricket on that particular day. What's very important is to have that belief, and that magic wand actually is the support staff and the 15 players, because, irrespective of what others think, what really matters is what the guys are thinking, what 15 people who are part of the team are thinking and how the management is working. Till we are moving in one direction and we are together, there are more chances of us making a strong comeback. My defending champions first game, not great results in the tri-series. How important was it for you to win and win in the manner in which you did? Well, I think winning was important to start off, because we have not won a lot of games. In Afghanistan was the only warm-up game that we had won. So once you start thinking about all these things, you get caught up, with a lot of thoughts. So what was important was to not think about the past. It's something that you will keep getting flashes, but it was important not to, get entangled with these thoughts. Think more about the process, what needs to be done, because ultimately what will really matter is the present. At times, what we have seen is, you have pressure of expectation and, that burden of your own performance, that you want to do. So all of that really plays a part, but I felt, the guys did really well because, a World Cup opening game against Pakistan, it is a high-stake game, but at the same time, we don't want to give it too much of an importance, because irrespective of whether you're playing Pakistan or Australia, the games are as important. You get the same number of points. Your run rate, depending on the margin you win with, it's the same. So I feel, we tried to keep it as normal as possible, and to a lot of extent, we were able to do that. Last 4 questions in Hindi. Rajaram, Sunandan Lele, Derek. MS रायना को नंबर 4 पे भिजाने के पीछे क्या सोचती? क्या आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन देख रहे थे या फिर पावर प्ले आपके जहन में था? और नहीं, लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन डेफिनेटली देख रहे थे थोड़ा, बट इम्पोर्टेंट है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि बैटिंग जो स्लॉट होता है, स्लॉट से इम्पोर्टेंट ओवर्स होते हैं, क्योंकि आप अपने गेम को स्पेशलाइज करते हो एक जनरल पैटर्न के तहत. अब जैसे रायना है यूजुअली 30 ओवर के आसपास, प्लस माइनस 2 to 4 ओवर्स, वो एक ऐसा ब्रैकेट है जब उसको बैटिंग करना जाना चाहिए, सो दैट पावर प्ले के पहले वो कुछ ओवर्स खेल ले, देख ले पिच का बाउंस कैसा है, उसके बाद वो एक्सेलरेट कर सकता है, एंड ही हैज टू स्टे टिल द एंड. जितने ज्यादा देर तक वो बैटिंग करेगा, हमने देखा है कि उसको रोक पाना बहुत मुश्किल है. सो आफ्टर द फर्स्ट 3, उसके बाद जो हमारा बैटिंग है, हम चाहते हैं कि काफी फ्लोटर्स उसमें रहें, क्योंकि अब 30वें या 32वें ओवर में विकेट गिरता है, उस समय अगर अजिंक्य को भेजें तो उसके ऊपर एक अनड्यू प्रेशर रहेगा टू मेंटेन दैट स्कोरिंग रेट. उस जॉब के लिए रायना इज बेटर सूटेड. तो हम बैटिंग नंबर से ज्यादा हम ये देखते हैं कि इस सिचुएशन में कौन बेहतर बैट्समैन है. सिचुएशन के हिसाब से हम प्रमोट और डिमोट करते हैं बैट्समैन को, बट इट्स समथिंग दैट ओनली हैपेंस इन दैट गेम. इट डजंट गेट कैरीड फॉरवर्ड. हमें देखना पड़ता है कंडीशन क्या है, कौन कौन से बॉलर बचे हुए हैं, उसके हिसाब से हम भी डिसीजन लेते हैं. माहिया, ये क्रिकेट खेल की तरफ आप कैसा देखते हो? क्योंकि मेहनत कर रहे थे, रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, और आज एक साथ सब फटाके फूट गए, तो क्या आप कहोगे भैया ऑल इज वेल? नहीं, अभी तक तो बोल सकते हैं. अगेन रिजल्ट जो चीज है वो हमारे बस में नहीं होती है, बट मेहनत करना हमारे बस में होता है, जो प्रिपरेशन होता है वो हमारे बस में होता है. तो इम्पोर्टेंट होता है कि आप मैच जीते या हारे, अगर आप उसी इंटेंसिटी से और उतना ही लगन से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, तो जो भी रिजल्ट हो, यू विल हैव टू एक्सेप्ट. और उसके बाद जो गलतियां होती हैं उसको आप अपने साथ फॉरवर्ड लेके चलो अपने अगले मैच में, सो दैट आप गलतियां ना दोहराओ. जितने देर में आप गलती करेंगे उतने आप बेहतर बैट्समैन या बॉलर बनेंगे.
सो ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, तो हम इसी पे ज्यादा ध्यान देते हैं कंपेयर टू हर एक जो आप मैच हारते हैं, वो मैच हारने का बर्डन अपने साथ लेके जाएंगे तो उससे बाहर आना और ज्यादा मुश्किल होता है। लास्ट टू डेरेक एंड संदीप। माही, विराट का नॉक जो था टिपिकल एग्रेसिव नॉक नहीं था, काफी कॉशियस लग रहे थे, तो उनका रोल आज स्पेसिफिकली शीट एंकर का था, और क्या जरा बता सकते हो उसके बारे में? नहीं, अगर आप देखें तो मैंने बोला इनिशियली बहुत इजी विकेट नहीं था, थोड़ा वेरिएबल बाउंस था, और साथ में उनकी जो पाकिस्तान टीम की स्ट्रेंथ है, उनकी स्ट्रेंथ भी फास्ट बॉलिंग है, तो अच्छे एरियाज में उन्होंने बॉलिंग की। दे मेड श्योर कि विराट के लिए और दूसरे बैट्समैन के लिए भी काफी मुश्किल था फ्रीली स्ट्राइक रोटेट करना, बट बीच में उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की। जब शाहिद अफरीदी आए और दूसरा स्पिनर आया और एक तरह से फास्ट बॉलर लगे ही हुए थे, उस समय भी उन्होंने स्ट्राइक अच्छे से रोटेट किया, और जो बीच में डिलीवरीज मिली उस पर बाउंड्रीज भी ली, और जितना कम रिस्क लेके आप जितना ज्यादा रोटेट कर सकते हैं उतना अच्छा आप बोल सकते हैं एक प्लेटफॉर्म आपको मिलता है। सो आई थिंक बहुत ही अच्छी बैटिंग की विराट ने आज, और हर गेम में डिमांड के हिसाब से और विकेट के बिहेवियर के हिसाब से आपको अपना गेम थोड़ा ऑल्टर करना पड़ता है, विच आई फील हैज टू बी डन। तो उसमें विराट ने आज काफी उन सारी चीजों को देखते हुए काफी अच्छी बैटिंग की। अब शिखर को भी अगर आप देखें तो नॉर्मली काफी एग्रेसिव खेलते हैं, बट आज काफी अच्छा रोटेट करके खेल रहे थे, और दे वर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, विच आई फील इज इम्पोर्टेंट। लास्ट टू माही, ये बड़ा इमोशनली ड्रेनिंग गेम होता है पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो आर यू रिलीव्ड दैट दिस गेम अब इज आउट ऑफ द वे, नाउ यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कप? वेल येस, इट इज इमोशनली काफी ड्रेनिंग होता है। कितना भी हम बोल रहे हैं कि नॉर्मल गेम है, बट वो उतना नॉर्मल नहीं होता है, थोड़ा सा स्पाइस ऊपर से लग ही जाता है। 5 स्टार में जाए तो थोड़ा ऊपर से खाना सजा के ही दिया जाता है, तो उस टाइप से थोड़ा होता है, तो थोड़ा इमोशनली ड्रेनिंग डेफिनेटली होता है, बट एट द सेम टाइम जो लड़के होते हैं वो बहुत ज्यादा चार्ज अप रहते हैं, एंड उस इंटेंसिटी को और उसको चैनलाइज करना इंपॉर्टेंट होता है। तो इस गेम में हमने देखा कि सारी चीजें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से की, बट जैसा कि मैंने बोला कि काफी एरियाज अभी भी हैं जहां हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। स्पेशली बॉलर्स को और ज्यादा भार लेना पड़ेगा, क्योंकि हर बार हम उनको 300 रन लेके नहीं दे सकते हैं। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि एक बार जब 300 रन बन गए हैं तो धीरे धीरे उनका परफॉर्मेंस भी बढ़ता रहे, ताकि जब आप टूर्नामेंट में आगे को बढ़ते जाए तो यू रिलाई अलॉट ऑन योर बॉलर्स ऑल्सो। हर बार हम ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एक पार प्लस स्कोर करके बैट्समैन देंगे उसके बाद हम उसको डिफेंड करेंगे। एट टाइम्स ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि हम सेकेंड बैटिंग कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट होगा कि हम ऑपोजिशन को 240 या 230 पे रोकें, क्योंकि यहाँ पे वी डोंट नो व्हाट अ गुड स्कोर इज। किस विकेट पे 240 भी अच्छा होता है, बट सेम विकेट में अगर आपकी पार्टनरशिप हो गई तो 270 भी बन सकते हैं। तो वेरिएबल्स काफी हाई है, तो इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको एक मौका मिला है जहां पे आप ऑपोजिशन को कम रन में रोक सकते हैं, तो यू हैव टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, और उसको मेक श्योर करना चाहिए कि हम बैट्समैन के लिए जॉब इजी कर दें। थैंक यू।